अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लियर? थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है। तो ये जो यहाँ पे वर्ड एट्रीब्यूट है, इसके माने हैं क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, उसकी कोई क्वालिटी है, ही इज ऑनेस्ट, दैट मीन्स उसकी जो ऑनेस्टी है ये इसका एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह कोई बंदा है, वो बहुत मतलब घटिया इंसान है, क्रिमिनल माइंड है, तो दैट मीन्स वो जो क्रिमिनलिटी है वो उसका एट्रीब्यूट है। सो इन एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव वे आउट नहीं है। सो दैट इज व्हाई टू मेजर सच काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स द वे आउट इज क्वालिटेटिव वे आउट। सो दैट इज व्हाई यूजुअली वी सी, जनरली जो स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं, वी डील विद क्वांटिटेटिव डेटा ओनली। बट जो इस तरह का डेटा होता है, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं इस तरह के, तो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम जो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, these are the part of behavioral science. So what does behavioral science mean? It means the scientific study of human and animal behavior. So to study behavioral sciences and to measure different attributes, we use qualitative statistics, not quantitative. So that's why it says uh, these are the variables which cannot be quantitatively measurable, which cannot be measured quantitatively. That's why we have to find some another way out. That means we have to measure them qualitatively. So because these represent the quality or characteristic of some human being or some animal, whatever. So literally speaking, attribute means quality or a characteristic. So clear? So which are not related to quantitative measurements, clearly. So examples of attributes, as I was earlier discussing, health है, honesty है किसी बंदे में, that's an attribute or characteristic or a quality. Similarly, these things cannot be measured directly. So जो एक observer होगा, the observer may find the presence or absence of these attributes. For example, अगर आप एक observer है, आपके सामने कोई बंदा आता है रोज 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 रोज, so you are observing that person on daily basis. So after some time you may reach a conclusion about that person, whether that person is honest or not. So we can say the honesty may be present or absent in that person. So accordingly we can say the attribute is present or absent. Clear? Statistics of attributes based on descriptive character. So it is the statistics of attributes based on descriptive character. That means you are describing that character of that person. So I hope this part is clear. So let's move on. Now we will be seeing some noted three parts of theory of attributes. So that's why here we see the topic is notation. So now we have association of attribute is studied by the presence or absence of a particular attribute. It means whether an whether the attribute is associated to a person or not. We can say that the attribute is present or absent in some particular person or thing. So similarly, while we are observing some person or thing, we may be observing many things, not just his honesty, but maybe we may be observing whether that person is intelligent or not, or whether that person is literate or not. So similarly, we can say if we are just concentrating on one attribute, that means we can say that attribute is either present or not. So accordingly, we can say uh, we can form two classes. For example, if we have 10 persons
And if we are observing these 10 persons for one attribute like honesty, then we can say, for example, 3 out of 10 are honest and 7 are dishonest. So we can say by observing just one attribute, we divided these 10 persons into two classes. The class in which dishonesty was present is one class, and the class in which dishonesty was not present it constitutes another class. So we can say if we are just observing only one attribute, we can then divide that group of persons which we are observing into two classes. So we can say if only one attribute is being studied, the population, then the population under observation is divided into two classes according to its presence or absence. एंड सच क्लासिफिकेशन वो जो एक क्लासिफिकेशन है जिसमें एक पॉपुलेशन दो क्लास में बांट जाती है बट जाती है बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग जस्ट द वन एट्रीब्यूट ऑफ दैट पॉपुलेशन विच वी आर करंटली ऑब्जर्विंग और स्टडिंग सो इस चीज़ को जिसमें एक पॉपुलेशन दो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक इस चीज़ को हम बोलेंगे डाइकोटोमी because we have divided the population into two classes by observing one single attribute only. But it may not be the case that we are just studying only one attribute of that population. It may be the case that we are studying multiple attributes of some population, and accordingly, we may divide that population in many classes. So, if we are now studying attributes more than one attribute, so obviously there is possibility, or obviously there will be more than two classes. So in that case, by studying more than one attribute, there will be more than one classes in which the population will be divided. So in that case, this classification will be called manifold classification. So this one is called manifold classification. So these are some important terms that you should remember. Now moving on, similarly we have one important thing, it's called positive clause and negative clause. Positive clause means, for example, if we are studying 10 persons for honesty, and if there are 3 out of 10 persons which are honest, that means we are forming a class called honest, and another class which is its opposite is dishonest class. So this honest class is considered positive class because now in this class we have persons which are honest, that means they are having this attribute, so they are showing positivity towards this attribute, so that means this that becomes positive class. Similarly, those 7 persons out of 10 which are dishonest, because they are not showing a positive trend, so that we can say those 7 persons constitute a class in which there is absence of honesty, so that means that is a negative class. So we have positive class if the attribute is present. We have similarly negative clause if the attribute is not present. So clearly, I hope these things are clear. So now, one important thing that you have to remember here is, for example, for example, if we have now we are searching for honesty, but now we have 10 persons under study and we wish to see which of those are honest and which are dishonest. So that means we have a single attribute, honesty, and now the honesty may be present or absent. H for honesty and D for dishonest. So that means 3 persons are honest and 7 persons were dishonest. So the overall our attribute is honesty. We are checking for honesty, and if it is present, we say they are honest, and if it is not present, we say they are not honest or they are dishonest. Clearly. So now this positivity in which the attribute is present, it is represented by capital letters, capital alphabetic letters. For example, A. A here means the attribute is present, or we can say this A represents the attribute is present. Similarly,
alpha means the attribute is not present, or we can say A now represents a class in which there are people who are honest, and this alpha represents a class in which there are people who are dishonest. So that means this A is a positive class and alpha is negative class. So that's why we see here it says it says positive class which denotes the presence of attribute is generally denoted by Roman letters, generally A, B, etc. And the negative clause is denoted by the absence of attribute, and it is denoted by Greek letters alpha, beta, etc. For example, A here, see here, if you can see here A represents the attribute. Here A, for example, in this example, A represents the attribute literacy and B represents attribute criminal. So that means now they are opposite. The literacy का जो opposite है वो है illiteracy. That means illiteracy will be now represented by alpha, and the not criminal will be represented by beta, and literacy here जो literacy है ये पॉजिटिव है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर से ए। और इसी तरह जो क्रिमिनल है, अगर एक बंदा क्रिमिनल है दैट मीन्स ये पॉजिटिव चीज या पॉजिटिव क्लास में आएगा, प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनलिटी। तो दैट मीन्स वी कैन से वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल लेटर बी। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। So moving on, now we have classes and class frequencies. We have classes and class frequencies. Now what does this mean, classes and class frequencies? Let me mm, let me first help you with what is meant by class and class frequencies. For example, for example, for example, we are representing something honesty. H for honesty. यहाँ पे हम ऑनेस्टी का एक एट्रीब्यूट ढूंढ रहे हैं, पर सपोज हमारे पास यहाँ पे 10% है, 10% है यहाँ पे हमारे पास 10% वी हैव हियर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10% हियर। अब इन 10 बंदों में हम देखना चाहते हैं कि ऑनेस्टी कितने में है कितने में नहीं है। तो दैट मीन्स जिनमें ऑनेस्टी होगी वो पॉजिटिव क्लास में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑनेस्टी है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एट्रीब्यूट से, ए से। सो अब जिन लोगों में ऑनेस्टी होगी वो इस ए के क्लास में आए जाएंगे। दैट मीन्स क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव क्लास बन जाता है। प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट मीन्स इट बिलोंग्स टू द पॉजिटिव क्लास। सो दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बंदे हैं 1 2 3 ये ऑनेस्ट हैं, दैट मीन्स जो ये पॉजिटिव क्लास बन गया, क्योंकि पॉजिटिव क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिक लेटर्स से, इसी तरह रोमन लेटर से। इसी तरह से एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, अब जिनमें ये ऑनेस्टी नहीं है उनका एक अलग क्लास बनेगा दैट जो रिप्रेजेंट करेगा एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। तो आउट ऑफ 10 जो 7 है वो इसमें आ जाएंगे, 4 5 6 7। सो दैट मीन्स नाउ जो ये एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, ग्रीक लेटर अल्फा। तो एक हम देखना चाहते थे क्या ये ऑनेस्टी जो है इन 10 बंदों की पॉपुलेशन में है कि नहीं। तो जब हमने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो हमें मिला कि 3 बंदे जो हैं वो ऑनेस्ट हैं। तो उन ऑनेस्ट बंदों को हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन लेटर ए से, जो यहाँ पे रोमन लेटर ए है। इसी तरह से जो डिसऑनेस्ट हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर अल्फा से।
तो ये जो है ये वाला क्लास ये बन गया हमारे पास पॉजिटिव क्लास, दिस वन इज पॉजिटिव क्लास। और ये जो है ये बन गया नेगेटिव क्लास, क्योंकि इसमें वो बंदे हैं जो लैग करते हैं ऑनेस्टी को, और इसमें वो बंदे हैं इसमें जो शो करते हैं ऑनेस्टी। सो दैट मीन्स नाउ for one attribute we can divide the population in two classes. Similarly, if we have two attributes we can divide the population in four, uh, sorry, we can divide, if we have two attributes then we can divide the population in nine classes. We can see how. So let us see how is that possible. For example, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी और लिटरेसी देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे ऑनेस्टी और लिटरेसी में क्या ताल्लुक है आपस में। फॉर एग्जाम्पल एल एल एक एट्रीब्यूट है, लिटरेसी को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल लिटरेट एक एट्रीब्यूट है, हम देखना चाहते हैं पॉपुलेशन में लिटरेसी और ऑनेस्टी देखना चाहते हैं। दो एट्रीब्यूट्स हम देखना चाहते हैं, ऑनेस्टी एच ओ। तो ये जो लिटरेसी है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अगर लिटरेसी है, जिन जिन में लिटरेसी पाई जाएगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे उस क्लास को। वो क्लास जिसमें वो बंदे होंगे जो लिटरेट हैं वो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से वो क्लास जो ऑनेस्ट होंगे उनको बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से एक और क्लास बनेगा जिसमें लिटरेसी नहीं होगी, वो अल्फा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से एक और क्लास बनेगा जिसमें ऑनेस्टी नहीं होगी, उनको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट मीन्स इसी तरह से एक क्लास ऐसा बनेगा जो एक तो वो लिटरेट होंगे, लिटरेट भी होंगे और ऑनेस्ट भी होंगे। दैट मीन्स ए बी क्लास भी बन जाएगा, लिटरेट भी होंगे और ऑनेस्ट भी होंगे। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो इसी तरह से बनेगा, फॉर एग्जांपल लिटरेट है और लेकिन ऑनेस्ट नहीं है, दैट मीन्स ए और बीटा। एक और क्लास ये है ए और बीटा। इसी तरह से एक और क्लास बनेगी ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है लेकिन लिटरेट नहीं है, ये बन गया एक और क्लास। सो इसी तरह से एक और क्लास जो है वो ये है। फॉर एग्जांपल उसमें क्या बनेगा, यहाँ पे हमने देखा लिटरेट भी है ऑनेस्ट भी है, और फिर देखा लिटरेट है और ऑनेस्ट नहीं है। यहाँ पे देखा ऑनेस्ट है लिटरेट नहीं है। तो इसी तरह से एज सच वी कैन फॉर्म डिफरेंट क्लासेस। तो यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, और एक और इसमें से एक और जो है क्लास बनेगा वो शो करेगा दोनों की एब्सेंस, दैट मीन्स अल्फा और बीटा भी। दैट मीन्स ऐसे बंदे जिसमें ना लिटरेसी है ना ऑनेस्टी है वो क्लास भी यहाँ पे क्रिएट होगा। तो दैट मीन्स टोटल वी कैन से फॉर टू एट्रीब्यूट्स वी कैन फॉर्म 8 क्लासेस। क्लियरली? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन 8 में से जो पॉजिटिव क्लासेस हैं, ये वाला पॉजिटिव क्लास है और बी है पॉजिटिव क्लास, और ए बी भी है पॉजिटिव क्लास, क्योंकि ए बी उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है जो दोनों है, लिटरेट भी है ऑनेस्ट भी है। और इसी तरह से जो बाकी यहाँ पे बचे वो आप देखोगे सब नेगेटिव क्लासेस हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो अल्फा है ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये भी नेगेटिव है, क्योंकि इसमें एक प्रेजेंट है एक एब्सेंट है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक प्रेजेंट है और एक एब्सेंट है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो है बाकी जो भी क्लास है उनमें या तो दोनों एब्सेंट है या दोनों में से एक एब्सेंट है, तो उसका मतलब वो नेगेटिव क्लास हो गया। क्लियर? तो
ये चीज़ थी क्लास के बारे में। आई होप जो क्लासेस मैंने अभी दिखाए ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो नाउ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, अब फिर से हम इसका थ्योरेटिकल कुछ पढ़ेंगे। इट सेज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देयर सब ग्रुप्स एंड कॉम्बिनेशंस और कॉल्ड डिफरेंट क्लास। जो अभी मैं आपको समझा रहा था वो ये वही चीज़ है। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस असाइन्ड टू देम और कॉल्ड देयर क्लास फ्रीक्वेंसीज। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कितने ऑनेस्ट हैं? अगर 3 ऑनेस्ट है दैट मीन्स ऑनेस्ट होने की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3। सिमिलरली अगर बाकी जो बचे 7 वो डिसऑनेस्ट है, तो जो डिसऑनेस्ट क्लास है, डिसऑनेस्ट क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 7। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आप असाइन करोगे एक क्लास को, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। तो दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिर्फ एक एट्रीब्यूट है ऑनेस्टी, तो इस ऑनेस्टी के लिए हमें हमारी जो पॉपुलेशन है वो दो क्लास में डिवाइड होगी। दो क्लास, दैट मीन्स फॉर ईच एट्रीब्यूट we can see if there is one attribute then we have two classes. Similarly जब हमारे पास दो एट्रीब्यूट थे तो we were having almost 3 raised power 2 minus 1, 3 raised power 2 minus 1 classes we were having। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था लिटरेसी और ऑनेस्टी का, उसमें हमने देखे थे 8 क्लासेस आ रहे थे हमें जब हम दो एट्रीब्यूट्स को ले रहे थे। तो 3 रेज पावर 2 इज 9 माइनस 1 इज 8। सो क्लियर। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे जब एक ही एट्रीब्यूट होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगी? उसके लिए फॉर्मूला बन सकती है 3 रेज पावर, क्योंकि एट्रीब्यूट तो एक ही है, 3 रेज पावर 1 माइनस 1। सो नाउ दैट इज 2। I hope these things are getting clear. So now that's why it says if two attributes are studied then the number of classes। यहाँ पे जो है ये क्यों 9 ले रहा है? असल में जब अभी मैंने बोला कि only for two attributes we have only 8 classes, लेकिन यहाँ पे ये क्यों बोल रहा है 9? क्योंकि ओवरऑल जो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉपुलेशन है 10 पीपल्स की पॉपुलेशन, जो ये पॉपुलेशन है 10 पीपल की, फिर इसी इसी पॉपुलेशन को स्टडी करके हम जो है डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉपुलेशन पे एक एट्रीब्यूट सर्च करेंगे ऑनेस्टी का, एक ही एट्रीब्यूट देखेंगे तो इसमें जो है तो ये पॉपुलेशन दो क्लास में डिवाइड होती थी। एक तो होती थी ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट में, और ये तो हो गई दो, ऑनेस्ट क्लास और डिसऑनेस्ट क्लास दो। और फिर ये ओवरऑल जो ये वाला खुद है ये 10 पीपल्स की जो ग्रुपिंग है ये इसको भी कंसिडर करता है एक अलग क्लास। तो दैट इज व्हाई इट सेज फॉर वन एट्रीब्यूट इस हिसाब से 3 आ जाएंगी क्लासेस। लेकिन एक्चुअल में जब हम स्टडी करने के बाद जो हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं वो आ जाएंगे जो मैंने अभी बताया, 3 रेज़ पावर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स माइनस 1, 3 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स माइनस 1। फॉर एग्जांपल if we are studying just one attribute then the number of classes will be 3 raised power 1 minus 1। एंड सिमिलरली जो ये है यहाँ पे पावर आप दोगे इसको नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स तो आपको नंबर ऑफ क्लासेस मिल जाएंगे। क्लियर। सो नाउ अब यहाँ पे एक जो है ये यहाँ पे देखना है हमें, ये क्या इसका क्या मतलब है? जो यहाँ पे ए है और इसके इर्द गिर्द जो ये ब्रैकेट्स है इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल दैट बिलोंग टू a class A। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपने देखना है कि जो A है और जो ब्रैकेट्स में A है इसमें क्या फर्क है? A और जो ब्रैकेट्स वाला A है इसमें क्या फर्क है? A का मतलब है क्लास, A रिप्रेजेंट करता है क्लास को। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं कि ऑनेस्ट है कि नहीं है, और अगर हम इस ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो दैट मीन्स वो क्लास
जो रिप्रेजेंट करेगा उन लोगों को जो ऑनेस्ट होंगे, तो हम उसको बोलेंगे दिस क्लास इज कॉल्ड ए। और वो क्लास जो रिप्रेजेंट करेगा उन लोगों को जो ऑनेस्ट नहीं है, उसको हम बोलेंगे अल्फा। सो नाउ, अब इस क्लास में कितने लोग आएंगे? 3 आएंगे, 4 आएंगे, कितने लोग आएंगे? उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, और उसके इर्द गिर्द हम लगाते हैं ब्रैकेट, क्योंकि ये वाला जो है ए विद ब्रैकेट्स इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस एट्रीब्यूट के अंदर, इस क्लास के अंदर कितने लोग आते हैं। सिमिलरली, जो ये अल्फा है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितने लोग हैं जो अल्फा हैं, या हम बोलेंगे डिसऑनेस्ट है, कितने लोग डिसऑनेस्ट है। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जो ये ब्रैकेट्स होते हैं इन लेटर्स के इर्द गिर्द, जो ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल। ये जो सारा सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। क्लियर? नाउ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी मैंने फ्रीक्वेंसी बताया आपको, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। इट इज सिंपली द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और यूनिट्स बिलोंगिंग टू ए क्लास। तो एक क्लास में अब कितने लोग आ गए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जैसे हमने 10 पीपल की पॉपुलेशन ली, उसको स्टडी किया, फिर उसमें से 3 ऑनेस्ट आए और 3 डिसऑनेस्ट आए, और जो वो ऑनेस्ट थे उनको हमने रिप्रेजेंट किया एक एट्रीब्यूट से ए से, और जो डिसऑनेस्ट थे उनको हम रिप्रेजेंट किया अल्फा से। तो एक क्लास बन गया हमारे पास ए, और दूसरा क्लास बन गया हमारे पास अल्फा। तो ये वाला पॉजिटिव है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। ये वाला नेगेटिव है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर कितने लोग आएंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पॉजिटिव क्लास। सिमिलरली, इसके अंदर कितने लोग आएंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द frequency of this negative class, क्योंकि it shows the absence of attribute. This class represents the people which are showing the absence of that attribute. Clear? So this is about frequency. Now यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये टेबल, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देंगे, अभी हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है हमारे पास 10 पीपल का, और उसमें देख रहे हैं कि लिटरेसी और ऑनेस्टी, हम दो एट्रीब्यूट चेक कर रहे हैं हम 10 लोगों की। और जो लिटरेसी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, प्रेजेंस ऑफ लिटरेसी इज ए एंड एब्सेंस ऑफ लिटरेसी इज अल्फा। सिमिलरली, प्रेजेंस ऑफ ऑनेस्टी इज कैपिटल बी एंड द एब्सेंस ऑफ ऑनेस्टी इज बीटा। Clear? So that's why here we see this, it means literacy, and this means absence of literacy, and this means honesty, and this one beta means absence of honesty. तो एक क्लास हमारे पास बनेगा जिसमें वो बंदे आएंगे जो सिर्फ लिटरेट है। इसी तरह एक क्लास हमारे पास आएगा जिसमें वो बंदे होंगे जो इलिटरेट हैं, वो अल्फा में आएंगे, वो बंदे इस क्लास में आएंगे। इसी तरह से जो बंदे ऑनेस्ट हैं वो आएंगे ऑनेस्ट क्लास में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और डिसऑनेस्ट लोग आएंगे एक क्लास में बीटा में। इसी तरह से, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये क्लास है ए, क्लास ए है ये। इसी तरह ये क्लास है अल्फा, इस तरह ये क्लास है बी, और ये क्लास है बीटा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो ए और बी है, ये जो ए और बी है, ये ए बी, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ए बी, और इनके गिरद जो ब्रैकेट्स है, इसका मतलब है ये एक ऐसे क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ये ऐसे क्लास की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स हैं। ये ऐसे क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो लिटरेट भी है, ऑनेस्ट भी है। क्योंकि यहाँ पे जो ए है इसका मतलब है लिटरेट, और बी का मतलब है ऑनेस्ट। और जो ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ पीपल हु आर बोथ लिटरेट एंड ऑनेस्ट। सिमिलरली, जो यहाँ पे है ये अल्फा, इसका मतलब है इलिटरेट, और इसका मतलब है इलिटरेट एंड ऑनेस्ट। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल हु आर इलिटरेट एंड ऑनेस्ट, दोनों चीज़ें।
एक तो वो इलिटरेट हैं और ऑनेस्ट भी हैं, दोनों चीज़ें एक साथ ऐसे लोगों में पाई जाती हैं। कितने लोग होंगे वो, तो उनकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बी और उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट से। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फॉर टू एट्रीब्यूट्स हमारे पास कितने क्लास आएंगे। फॉर टू एट्रीब्यूट्स ए, एक तो ए आएगा क्लास, बी भी आएगा क्लास, और अल्फा आएगा, बीटा आएगा, और इसके बाद आ जाएगा हमें कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लेंगे हम, दो दो की कॉम्बिनेशन लेंगे। अब एक क्लास आएगा ए बी, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स होंगे मौजूद, ए बी। तो दूसरा क्लास आएगा ए, एक कैरेक्टर होगा एक एब्सेंट होगा, दैट मीन्स ए और बीटा, बीटा है ये। इस तरह से एक और क्लास आएगा जिसमें बी तो प्रेजेंट होगा लेकिन ए एब्सेंट होगा, वो होगा अल्फा। तो इसी तरह यू कैन लुक फॉर अदर कॉम्बिनेशन। सो ओवरऑल फॉर टू एट्रीब्यूट्स आई टोल्ड यू कितने क्लास बनेंगे, दैट इज 3 रेज पावर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स माइनस 1। 3 रेज पावर माइनस ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्योंकि यहाँ पे हम दो एट्रीब्यूट्स की बात करें तो 2 है, 3 रेज पावर 2 माइनस 1, ओवरऑल 8 क्लासेस बन जाएंगे। तो फिर हम उन सभी क्लास की अगर फ्रीक्वेंसी देखना चाहेंगे तो वी कैन सी दैट, बट ओवरऑल जो है हम देखते हैं जो उनमें जो ज़्यादा ग्रुपिंग, दो दो एट्रीब्यूट्स वाले जो ग्रुप होते हैं या क्लास होते हैं, हम उन्हीं को ज़्यादातर उनको बोलते हैं अल्टीमेट क्लास। अल्टीमेट क्लासेस हम बोलेंगे जो यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ए बी है, ये अल्टीमेट क्लास है। ए बीटा भी अल्टीमेट क्लास है। बी अल्फा हमारे पास अल्टीमेट क्लास है। और इसी तरह से हमारे पास आएगा एक और अल्टीमेट क्लास, वो रिप्रेजेंट करेगा अल्फा और बीटा को। तो इनको हम बोलेंगे अल्टीमेट क्लासेस। ये जो अल्टीमेट क्लासेस है जो दो दो एट्रीब्यूट्स वाले लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे। क्योंकि हम दो एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो जब दो एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो फिर जो दो दो एट्रीब्यूट वाले क्लास बन जाएंगे उनको हम बोलेंगे अल्टीमेट क्लास। इसी तरह से अगर हम तीन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो फिर जो जब हम उसमें क्लासिफिकेशन करेंगे जो तीन तीन वाले कलर्स आएंगे तो वो उसमें बन जाएंगे अल्टीमेट क्लासेस। तो इसी तरह से जो है रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द क्लास फ्रीक्वेंसीज, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, देखेंगे क्या इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फिर से ऑनेस्टी पे एक एट्रीब्यूट है हमारा ऑनेस्टी, एच फॉर ऑनेस्टी। तो इस ऑनेस्टी को जब हम ऑब्जर्व करेंगे एक ग्रुप ऑफ पीपल में, पॉपुलेशन में, तो हम दो क्लासेस हमें मिल जाएंगे। एक बन मिल जाएगा हमें वो क्लास जिसमें लोग आएंगे जो ऑनेस्ट होंगे। दूसरा वो क्लास जो हम उसमें वो क्लास आएगा जिसमें डिसऑनेस्ट लोग आएंगे। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे हमें मिल गए 7 पीपल विच आर डिसऑनेस्ट और 3 पीपल है ऑनेस्ट। तो जब हमने ऑनेस्ट एट्रीब्यूट देखा इन ए पॉपुलेशन ऑफ 10 पीपल, तो हमें मिले दो क्लासेस, दिस वन एंड दिस वन। नाउ ऑब्वियसली जब हम इस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट है, इट मीन्स ए। और ये वाला जो है ये वाला जो है इट इज एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, इट मीन्स अल्फा। सो नाउ ओवरऑल इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, रिप्रेजेंट करेंगे हम ए और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट। तो ये ए किसके बराबर है, अगर आप देखेंगे ए के बराबर है 3 के बराबर। तो सिमिलरली जो ये है ये वाला क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और उसके गिर्द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स। और कितने लोग आते हैं इसमें, 7। तो 7 पीपल इसमें आते हैं। तो दैट इज वाई ओवरऑल पॉपुलेशन क्या थी, 10। तो एन वाज, ओवरऑल पॉपुलेशन हमारे पास एन थी, एन वाज इक्वल टू 10। तो जब हमने एक एट्रीब्यूट स्टडी किया इस पॉपुलेशन का, तो हमें मिले ए, एक क्लास मिला हमें ए और दूसरा क्लास मिला हमें अल्फा।
और जो A है, it shows the presence of attribute, alpha shows the absence of attribute. So we can say A is the positive colors, alpha is it is negative colors. So overall, we can say if we add the frequencies of these two classes, it becomes equal to n. 3 plus 7 is equal to 10. So that's why it says here, अगर आप देखोगे n is equal to, यहाँ पे फिलहाल आप इतना concentrate करो, it says n is equal to the frequency of A plus the frequency of alpha. Similarly, अगर आप देखोगे, फिर इसने यहाँ पे लिया है इक्वल टू बी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ए प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा. फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी 10 लोगों में जो है कोई और एट्रीब्यूट भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल लिटरेसी, लिटरेसी भी अगर हम इन 10 लोगों में सर्च करते, तो लिटरेसी को हम रिप्रेजेंट करते बी से और इसकी एब्सेंस को हम रिप्रेजेंट करते बीटा से. तो अगर इन, फिर एक क्लास बनता बी और दूसरा क्लास बनता हमारे पास बीटा, ये वाला बीटा. तो इसमें भी कुछ लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल लिटरेट हमारे पास, हम बोलेंगे कि लिटरेट तो है इसमें 6 तो लिटरेट हैं और 4 इलिटरेट हैं. तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर से ओवरऑल इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी बी विद ब्रैकेट्स ऑन बोथ साइड्स, पी इक्वल टू फॉर एग्जांपल 6, यहाँ पे ये बन जाएगा पी इक्वल टू 6 और बीटा बन जाएगा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 4, लेकिन बीटा विद ब्रैकेट्स ताकि ये रिप्रेजेंट करे फ्रीक्वेंसी को. क्लियर? So that's why it says n is equal to either frequency of A plus frequency of alpha if we are studying only one attribute, and in case we are studying more than one attribute, so this is what it means. So we'll be discussing it further in next classes. Please tell me if this was clear and if you could easily understand it. So I'll be concluding this for now. I'll